بائبل بارڈ سبق 77 بائبل اور غلامی مقصد ہیلو اور اچھا دن۔ یہ بائبل بورڈ ہے۔ ایک بارڈ ایک کہانی سنانے والا ہوتا ہے جو کسی خاص زبانی روایت سے وابستہ روایتی باتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ میں یہاں تلاوت کرنے اور اس بات کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں کہ بائبل کا لٹریچر اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ خدا کون ہے اور کون انسان ہے۔ سبق: یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں۔ بائبل کے ناقدین کا دعویٰ ہے کہ بائبل کے بعض اقتباسات غلامی کے رواج کی واضح طور پر مذمت کرنے، ان کو منظم کرنے یا اس کی مذمت کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ ناقدین اس خیال کو فروغ دیتے ہیں کہ اگر بائبل کا خدا اتنا اچھا ہے تو اس نے 5000 پہلے غلامی کے انسانی رواج کی مذمت کیوں نہیں کی، یا کم از کم یسوع کے آنے کے بعد اس نے 2500 سال پہلے اس کی مذمت کیوں نہیں کی۔ بائبل بورڈ کو دلچسپی ہے کہ بائبل کے مسائل کے بارے میں کیا کہتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں بائبل کی متعدد آیات کو درج کروں جو بائبل کے مواد اور غلامی کے بارے میں مصنف ایک انفرادی رویوں کو بیان کرتی ہیں، آئیے پہلے خود کو ایک ادارے کے طور پر غلامی پر نظر ڈالیں۔ رضاکارانہ غلامی۔ قدیم زمانے میں وہ افراد جنہوں نے خود کو پایا موت کے کنارے اپنے آپ کو غلامی میں بیچ سکتے ہیں، اس لیے غربت، قرض یا بھوک سے بچ سکتے ہیں۔ موسوی قانون میں اگر کسی عبرانی نے ایسا کیا تو قانون خدا کا تقاضا تھا کہ ایسے غلاموں کو 6 سال کی خدمت کرنے کے بعد رہا کیا جائے۔ دیکھیں استثنا اس کا 12 باب اس کے 15 سے 18 آیت۔ امریکہ کے قیام کے بعد وہ غربت جو یورپ سے افرار ہونا چاہتے تھے، ایک غلامی کے معاہدے پر دستخط کر کے نئی دنیا میں جانے کے بدلے میں انہیں برسوں کی مزدوری کا پابند بنا سکتے تھے۔ جن معاشروں میں دیوالیہ پن کا نظام نہیں ہے، قرض دہندگان نے قرض دہندگان اور یا کنبہ کے افراد کو غلاموں کے طور پر پکڑ لیا۔ جب مقروض اپنے قرض میں ڈیفالٹ کرتا تھا، ضابطہ حمورابی دیکھیں۔ یہ رواج آج بھی مختلف ممالک میں جاری ہے۔ غیر اداری غلامی زیادہ تر قدیم اور جدید معاشروں میں عام ہے، جہاں شکست خوردہ فوجوں اور شہری آبادیوں کو جنگ کے سامان کے طور پر پکڑ کر غلام بنا لیا گیا تھا۔ مصر، بیبلونیا، اشوریہ، چنگ اور روم کی تاریخ دیکھیں۔ چٹیل غلامی مطلق غلامی جہاں لوگوں کو جائیداد سمجھا جاتا ہے اور زندگی بھر کے لیے غلام بنایا جاتا ہے۔ کچھ معاملات میں لوگ اپنا راستہ خرید سکتے ہیں۔ آزادی جیسا کہ اولادا ایکوینانو کے معاملے میں ہے کہ ایک علاقے میں چھاپہ مارنے کے بعد برطانوی جزائر وائکنگ اکثر لوگوں کو غلام بناتے تھے، کچھ سیکھتے تھے اور انہیں یورپ میں اساتذہ، ذاتی مدد اور گھریلو ملازموں کے طور پر بھیج دیتے تھے۔ ایزٹیک اور انکین معاشرے میں رایا قوموں کے لیے معاون غلاموں کی ضرورت تھی۔ تعزیری غلامی پھانسی یا جسمانی سزا کے بجائے سزا یافتہ مجرموں کو غلام بنایا جا سکتا ہے۔ غلام سپاہی زیادہ تر اسلامی دنیا اور افریقہ میں، مثال مصر میں مملوک اور عثمانی جنصاری نے غلاموں سے سپاہی بنائے۔ جنسی غلامی یا زبانی بہت سے قدیم معاشروں میں رائج ہے۔ اسلام میں قرآن 4:24 خواتین جنگی قیدیوں کو جنسی طور پر اجازت دی گئی ہے۔ لونڈیاں قدیم دنیا میں 10,000 BC سے 1000 AD غلامی ٹیکنالوجی تھی۔ اگر آپ کو
एयर कंडीशन की ज़रूरत है तो एक गुलाम ने आपके सर पर हथेली का एक टुकड़ा लहराया। अगर आपको अपने घर को गर्म करने की ज़रूरत होती तो एक गुलाम लकड़ियां इकट्ठा करके आग लगाता। अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो एक गुलाम कुएं या नदी से पानी लेने चला गया। गुलामों की मेहनत से रहाम बनाए गए, कनाल खोदे गए, कानों में गुलामों ने सोना तलाश किया। ये सिर्फ चंद वाज़ेह मिसालें हैं। बाइबल इंसानी फितरत में गुलामी की बुनियाद को बयान करती है। गलतियों उसका 5 बाब उसकी 19 आयत बयान करती है। जिस्मानी अमाल वाज़ेह हैं, जिनसी है हयाई, नापाकी और बदकारी, बुत परस्ती और जादू टोना, नफरत, इख्तलाफ, हसद, गुस्सा, खुदगर्जी, इख्तलाफात, दड़ेबंदी और हसद, शराबी, बदमाशी वगैरह। गुलामी दूसरे इंसानों पर इंसानी तसल्लुत का एक तरीका है। ये बाइबल के खुदा का रूहानी मोड़ नहीं है। इस दौर में इंसान खुदा की मुखालफत कर सकता है, खुदा पर लानत भेजते हैं, बाइबल के खुदा को मुस्तरद करते हैं और इनकी मुखालफत करते हैं, और इनकी ज़िंदगी के दौरान अक्सर ऐसा लगता है कि खुदा की तरफ से इनका फैसला या सज़ा नहीं दी गई। वो जिंदा रह सकते हैं, जैसा कि आयत गलतियों 5 बाब 19 आयत बयान करती है। आने वाले ज़माने में ये आज़ादी जैसे इंसान अब अपनी शैतानी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करता है, खुदा से जितना मुख्तलिफ होना चाहिए, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ये है कि बाइबल असल में गुलामी के बारे में क्या कहती है। बाइबल बोर्ड इस बात में दिलचस्पी रखता है कि बाइबल असल में क्या कहती है, इसमें नहीं कि नाकदीन क्या कहते हैं। अब्रानी सहीफ़े अहदनामा कदीम 3000 से 4000 साल पहले, खरूज 21 बाब उसकी 16 आयत। जो कोई भी किसी को अगवा करता है, इसे मौत के घाट उतार दिया जाए, वह मकतूल भेज दिया गया हो या अभी तक अगवाकार के कब्जे में हो। तबसरा गुलामी का गेटवे अगवा की बाइबल में मजम्मत की गई है। 5500 साल पहले मौसूई कानून में यकीनन ये अब्रानी कौम और आसपास के ममालिक और लोगों के लिए खुदा का कानून है, और आलमी सल्तनतों ने इस कानून को तस्लीम नहीं किया। अहबार इसका 39 बाब उसके 25 से 43 आयत। अगर तेरा साथी बनी इसराइल में से कोई गरीब को हो जाए और अपने आप को आपके हाथ भेज दे, तो उनसे गुलाम ना बनाओ, क्योंकि बनी इसराइल मेरे खादम हैं, जिन्हें मैं मिस्र से निकाल लाया हूँ। उनको गुलामों के तौर पर ना बेचा जाए, उन पर बेरहमी से हुकूमत ना करो। तबसरा ये कानून सिर्फ अब्रानियों में से अब्रानियों पर लागू होता है। अगली आयत 44 से 46 गुलामी के अदारे को कबूल करती हैं, जैसा कि दूसरी कौमों में राइज है। यहूदियों के जरिए गैर यहूदियों को चेटल गुलामों के तौर पर खरीदा जा सकता था, यहाँ तक कि ये पहचान वकालत नहीं, इसके बजाय ये तस्लीम है कि गुलामी इंसानी माशरे का एक पहलू है। इन 3 आयात पर मजीद तबसरा के लिए अगला हिस्सा देखें। इस्तिश्ना उसका 15 बाब उसकी 16 से 23 आयत। अगर किसी गुलाम ने अपने आप के पास पनाह ली है, तो इसे इनके आका के हवाले ना करें, इन पर जुल्म ना करें। मूसा के कानून के तहत बगोड़े गुलामों के लिए तबसरा का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। यसाया 6 बाब की 58 आयत। क्या ये वो रोज़ा नहीं है जिसका मैंने इंतखाब किया है, नाइंसाफ़ी की जंजीरें खोलने और जुए के डोरियों को खोलने के लिए, मुज़लिमों को आज़ाद करने और हर जुए को तोड़ने के लिए। तबसरा कदीम माशरों में गुलाम बनाए गए
मजदूरों और बैलों को जुए के जरिए कंट्रोल किया जाता था। हर जुए को तोड़ दो। गुलामी की मुखालफत करने के लिए मोमिनीन के लिए एक काल थी जो मगरिब में 18वीं और 19वीं सदी में हुई थी। मशरिक में गुलामी 20 सदी तक जारी रही। गुलामी के खिलाफ तहरीर के पीछे इखलाकी कुव्वत मसीही थी और बाइबल के मतन पर मबनी थी। ये कुव्वत कुछ हद तक इस बात में कामयाब हुई कि गुलामी को आज ज़्यादातर कौमों में गैर कानूनी करार दिया गया है। इस समाजी तहरीक का मौक़िफ़ ज़्यादातर बाइबल के मतन की मसीही तशरीहात से पैदा होता है। ताहम मेहनत कश इंसान दिल की वजह से गुलामी और इंसानी स्मकिंग आज तक जारी है। अहबार उसका 44 बाब उसके 25 से 46 आयत पर मज़ीद आपके मर्द और औरतें आपके इर्द गिर्द की कौमों से आने वाले हैं। आप इनसे गुलाम खरीद सकते हैं। आप अपने दरमियान रहने वाले कुछ आर्जी बाशिंदों और आपके मुल्क में पैदा होने वाले इन कबीलों के अरकान को भी खरीद सकते हैं और वो आपकी जायदाद बन जाएंगे। आप इन्हें अपने बच्चों को विरासत के तौर पर दे सकते हैं और इन्हें उम्र भर के लिए गुलाम बना सकते हैं, लेकिन आपको इसराइल पर हुक्मरानी नहीं करनी चाहिए। तबसरा इसमें कोई शक नहीं कि ये 3 आयात चिटल गुलामी की इजाज़त देती हैं, लेकिन चूँकि बाइबल को अदब के तौर पर पेश करता है, इस गैर मामूली मतन के बारे में क्या कहा जा सकता है? ये अलाउंस मूसा के कानून का हिस्सा है जो खुसूसी तौर पर दी गई है। सिर्फ इसराइल की कौम, यह कानून कौमों के दरमियान खुदा का साथ उनके खास चुने हुए तल्लुक का सबूत था। लिहाजा ये मवाद किसी गैर यहूदी या किसी ऐसे यहूदी पर लागू नहीं होता जो वादा की सरजमीन में नहीं रह रहे हैं। ये मतन वकालत नहीं है, मतन एक अलाउंस या रायत है। अदब के तौर पर हम देखते हैं कि यस्सु ने कानून में दी गई एक और रायत के बारे में बात की है। मरकस उसका पहला बाब उसके 9 और 10 आए में यस्सु के दुश्मन एक सवाल के साथ इसके पास आते हैं, एक और मतनाज़ा मसला तलाक के बारे में। उन्होंने इससे पूछा, क्या मर्द के लिए अपनी बीवी को तलाक देना जायज़ है? ये सवाल यस्सु को कानून से मुतसादम करने के लिए फंदा है। फरीसी पहले ही जानते थे कि यस्सु तलाक के खिलाफ था, लेकिन यस्सु ने ऐसा जवाब दिया जो न सिर्फ तलाक के खिलाफ अपने सख्त मौकूफ पर कायम रहा, बल्कि कानून को भी बरकरार रखा। इसने मरकस 5 बाब की 10 आयत में कहा, ये इसलिए था कि तुम्हारे दिल सख्त थे कि मूसा ने तुम्हें ये शरीयत लिखी। दूसरे लफ्जों में यस्सु के मुताबिक अज़दवाजी अदम का मुताबकत के लिए कानून में एक अलाउंस बनाया गया था जिसमें तलाक का सर्टिफिकेट लिखने और तलाक याफ्ता बीवी को रुखसत करने की इजाज़त थी। ये इंसानी फितरत और सकाफत की वजह से दी गई रायत थी और इसलिए नहीं कि ये एक अज़दवाजी हल था जिसे खुदा ने मंजूर किया और इसकी वकालत की। बाइबल बोर्ड यहाँ गुलामी पर इस मतन के लिए यही दलील पेश करता है। कदीम इसराइली इस कानूनी इस्तिस्ना के तहत चीटल गुलामी में मशगूल हो सकते हैं। सिर्फ गैर इसराइलियों को गुलाम बनाया जा सकता है। क्या ये खुदा या बाइबल को गुलामी की वकालत के लिए मुजरम बनाता है? मेरे ख्याल में नहीं। पूरे इंसानी माशरे में गुलामी के अदारे के इस्तेमाल की वजह से, चूँकि गुलामी कदीम ज़माने की टेक्नोलॉजी थी, इसलिए यह मतन कदीम अबरानी माशरे में हालात के तहत और पाबंदियों के साथ गुलामी को राइज करने की इजाज़त देता है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये एक इस्तिस्ना है। सिर्फ इंसानी दिल की सख्ती की वजह से इजाज़त दी गई और इसलिए नहीं कि एक इखलाकी खुदा
इस इंसानी नाकामी को फरोग दे रहा था। नतीजा ये है कि खुदा तलाक से नफरत करता था और खुदा गुलामी से नफरत करता था, लेकिन इस इस्तिस्नात के ज़रिए इंसानी फितरत को अपने कदीम लोगों के साथ मुखातिब किया। यूनानी सहीफ़े नया अहदनामा 2000 से 2500 साल पहले मैथ्यू 12 बाब 7 आए, दूसरों के साथ वही सलूक करो जो आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें, क्योंकि यह तमाम अदनी और अंबिया का खुलासा है। तबसरा इब्तदाई तौर पर अपनी वजारत में यसु समाजी ज़िंदगी के लिए अपना इब्तदाई असूल देता है, एक ऐसा कायदा जो गुलामी से मुताबिकत नहीं रखता। मैथ्यू 39 बाब उसके 22 आयत। अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो। अपनी वजारत में देर से तबसरा करें। यीशु दोबारा जिंदा रहने के लिए रूहानी रहनुमाई फराहम करता है जो गुलामी से मुताबिकत नहीं रखता। मरकस 31 बाब की 12 आयत को भी देखें। गलतियों 28 बाब की 3 आयत। यहाँ ना कोई यहूदी है, ना गैर कौम, ना गुलाम, ना आज़ाद और ना ही मर्द और औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सू में एक हो। तबसरा असायत के अंदर, इंसानियत के अंदर किसी का समाजी मकाम बातल है। इंसानी हैसियत से कता नज़र मसीह के पैरोकारों को इन इंसानी इम्तियाज़ात को तस्लीम करना है। खुदा के सामने तर्क कर देना चाहिए। मसीहों को चाहिए कि वो तमाम लोगों को खुदा के सामने अपने बराबर समझें, चाहे इनकी इंसानी समाजी हैसियत कुछ भी हो। गलतियों पहले बाब की 5 आयत। ये आज़ादी के लिए है जो मसीह ने हमें आज़ाद किया है, बस साबित कदम रहें और अपने आप को दोबारा गुलामी के जुए गुनाह के बोझ में ना डालें। तबसरा ये आयत मसीही ज़िंदगी का मुआजना गैर मसीहियों की ज़िंदगी से करती है। खुदा के सामने इस आज़ादी की तारीफ करती है जो मसीह की पैरवी करने से ज़िंदगी की गुलामी गुनाह भरी तक आती है, जैसा कि ऊपर गलतियों 5 बाब की 19 आयत में बयान किया गया है। एक बार फिर यसाया 6 बाब के 58 आयत में पाई जाने वाली गुलामी के जुए का हुक्म दिया गया है। सीन ईसाया और गलतियों के दरमियान फ़र्क 650 साल पहले है। ये काबिल ज़िक्र अदबी मुस्तकल मजाजी है, जहाँ पुराने और नए अहदनामे दोनों एक ही इस्तारा इस्तेमाल करते हैं। कुलसियों 4 बाब की उसकी पहली आयत। मालिक अपने गुलामों को सही और मुतसाना चीज़ें फराहम करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आसमान पर आपका भी एक मालिक है। तबसरा यस्सू के हुक्म की तरफ तवज्जो देता है कि दूसरों के साथ ऐसा सलूक करें जैसा कि आपके साथ सलूक किया जाना है। लेकिन पाल फिल्मोन के लिए एक तरकीब देता है कि खुदा मोमनों की जिंदगियों पर कंट्रोल रखता है, यहाँ तक कि एक गुलाम ज़्यादातर अपनी राया पर कंट्रोल रखता है। पहला तिमोथियस उसका 9 बाब उसकी पहली से 10 आयत। हम ये भी जानते हैं कि कानून रास्तबाजों के लिए नहीं, बल्कि कानून शकनी करने वालों और बागियों, बेदीन और गुनाहगार, नापाक और बेदीन, अपने बाप या माँ को कत्ल करने वालों, कातलों के लिए, गुलामों के, ताजरों और झूठों के लिए बनाया गया है। तबसरा पाउल की नफरत अंगेज इंसानी सरगर्मियों की बाइबल की फुर्सत है में वो गुलामों के ताजरों की फुर्सत देता है। फिलमोन 15 बाब उसकी पहली से 16 आयत। शायद इस वजह से कि वो फिलमोन का बगोड़ा गुलाम ओनेसिमस आपसे थोड़ी देर के लिए अलग हो गया था कि आप इसे हमेशा के लिए गुलाम की हैसियत से वापस कर दें, बल्कि एक गुलाम से बेहतर एक अजीज भाई की तरह। रोमन दुनिया की वसी गुलामी के दौरान 1960 साल पहले लिखा गया तबसरा ये बाइबल की एक किताब है, एक गुलाम ओनेसिमस पर मरकूज है जो अपने मसीही आका से भाग कर इस आका के मजहबी उस्ताद पौल रसूल के पास हिफाजत के लिए जाता है।
یہودی پال نے اسے پناہ دی جو موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہے، لیکن جب انیسمس غلام مسیحی بن جاتا ہے تو پلوس نے اسے مشورہ دیا کہ وہ واپس آ جائے اور اپنے آقا فلمون کے پاس جمع ہو جائے، لیکن ایک خط بھیجتا ہے جس میں فلمون کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ انیسمس کے ساتھ مسیحی بھائی جیسا سلوک کرے، نہ کہ غلام کی طرح۔ ایک بار پھر جب کہ مسیحی رہ رہے ہیں انسانی سماجی حیثیت کی دنیا، انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی ساتھی مومن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اس حیثیت کو نظر انداز کریں۔ خلاصہ: غلامی انسانی معاشرے میں اتنی ہی عام ہے جتنی پانی مچھلی کے لیے۔ اس ادارے میں ڈوبے ہوئے کسی کو اس بد انسان ادارے کو رد کرنے کے لیے خدا کی وحی کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ اوپر دکھایا گیا ہے، قدیم بائبل کے مصنفین نے ایک ایسے ماحول سے لکھا جس میں حقیقی غلامی کے روزانہ مشاہدات اور بائبل کے منفی تبصرے مانتے یا غلامی کے بارے میں پابندیاں شامل تھیں۔ امریکہ میں غلامی کے خاتمے کے ماہر 1775 تا 1870 بہت سے مسیحی تھے نے بہت سے بائبل کے متن کا استعمال کیا تاکہ دوسرے شہریوں کو امریکہ میں غلامی کے خاتمے کی ترغیب دیں۔ ناقدین اور مذہب مخالفوں کی طرف سے بائبل کے متن کے واضح پیغامات اور غلامی مخالف کوششوں کو نظر انداز کرنے کی دانستہ کوششیں اکثر مسیحیوں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ واقعی بائبل مذہب ہے۔ موسیٰ کے قانون عہد نامہ قدیم اور یسوع کے الفاظ نیا عہد نامہ اور پال کی تحریروں دونوں میں غلامی کو خدا کی خواہش اور فطرت سے مطابقت نہیں رکھتا دکھایا گیا ہے۔ بائبل ایک ایسا ادب ہے جو یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کون ہے اور انسان کون ہے، اور 5000 سال پہلے بھی غلامی کی مذمت کرتا ہے۔ جب انسانی معاشرے میں عمومی پالیسی ان تمام طریقوں سے غلامی پر عمل کرنا تھی جن کی تفصیل اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں دی گئی تھی۔ نتیجہ: یہ بائبل بارڈ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر قرات پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، کوئی کلفشار نہیں، خرگوش کے راستے نہیں۔ بائبل بورڈ پیش کرتا ہے جو بائبل کسی موضوع کے بارے میں سکھاتی ہے۔ میں آپ کو کسی مذہب میں یا تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ بائبل بورڈ کا پوڈ کاسٹ معلوماتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بائبل کا ادب دراصل کیا بیان کرتا ہے۔ یہ جو نظریات اور تصورات پیش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی بائبل کے خیالات سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا فیصلہ خود کریں، چاہے آپ بائبل کے بیانات سے متفق ہو یا اختلاف۔ پیٹریون پر بائبل بارڈ پوڈ کاسٹ کی حمایت کریں۔ کم از کم $1 ہفتہ یا $5 ماہ پوڈ کاسٹ کے اخراجات کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بائبل بارڈ خود کوئی تنخواہ نہیں لیتا اور وزارت کے حامیوں کی تحفظ سے مالی طور پر فائدہ نہیں اٹھاتا۔ پر بائبل بورڈ کو کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں۔ آپ سے سن کر خوشی ہوئی۔ کنیکشنز: مندرجہ ذیل کے طور پر بائبل بورڈ کے مواد کی پیروی اور اشتراک کرنے کے لیے پیشگی۔ شکریہ۔